Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to start here with ICSE class 8 math exercises 16, that is linear inequations. Book is again your own Foundation Mathematics by R.S. Agarwal. This is the book. Let's proceed. Chapter is linear inequation, chapter 16 in your book, right? Now, before proceeding into the chapter, we will learn some basic concepts related to the chapter. So here the chapter is linear inequations. Linear inequation. What is inequation? First of all, you should know what is equation. What is equation? So equation is statement of equality of two algebraic expressions involving a variable. If I write here x is equal to x, this is equation, equality of two algebraic. If I write 2x, 2x, this is equal, right? And inequation, a statement of inequality between two expressions is called inequation. जब दो expressions एक दूसरे के बराबर या equal नहीं होंगे, then it would be called as inequation, right? For example, x is greater than 17. अब x is greater का मतलब क्या है कि x इससे bigger कब रहेगा? जब ये 17 से बड़ा रहेगा, यानी किसी भी कंडीशन में ये 17 के बराबर नहीं आएगा. तो if I write 18, it would become bigger than this in place of x, right? In the same way, 3x minus 1 is smaller than minus 5, right? So this is linear, this is inequation. Now linear inequation would be a statement of any of the following forms. First form would be ax plus b is greater than 0, or ax plus b is smaller than 0, or ax plus b is greater than and equal to 0, ax plus b is smaller than and equal to 0. These are four forms we have to keep in mind throughout the chapter, right? Here यहाँ पे आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि a एंड b हमेशा जो है रियल नंबर रहेंगे और a will never equal to 0, right? So this is, जब ये a 0 के बराबर नहीं रहेगा तो इसको हम बोलेंगे a linear equation in x, राइट? आगे आपको ये चीज़ समझ में आएगी जब हम एग्जांपल करेंगे. तो फिलहाल इसको भी ध्यान में रखिए यहाँ पे ऐसे ही. सो अब इसमें जो अगली टर्म है आपने ध्यान में रखनी है, रिप्लेसमेंट और यूनिवर्सल सेट. द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर चोजन. Keep in mind, the set from which the values of variable x are chosen so as to satisfy a given equation is called its replacement set. अब इसको ध्यान में रखिए, सिर्फ आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा. नेक्स्ट इज सॉल्यूशन सेट. व्हाट इज सॉल्यूशन सेट? पीछे हमने पढ़ा रिप्लेसमेंट सेट. व्हाट वाज रिप्लेसमेंट सेट? द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर चोजन सो एज टू सेटिस्फाई अ गिवन इनइक्वेशन, राइट? अब आओ यहाँ पे सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन सेट इज व्हाट? इट इज़ अ सबसेट ऑफ, रिमेंबर, सबसेट of the replacement set
consisting of all those values of variable x which satisfy the given in equation, right? This is subset of replacement set, keep in mind, इसको आपने ध्यान में रखना है बस। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट और रिप्लेसमेंट सेट को हम एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशन। द इक्वेशन इज लीनियर in equation, right? So here x is smaller than 5, x is smaller than 5, इसको माइंड में रखा आपने। where the replacement set is the set of all natural numbers, तो इसने यहाँ x is smaller than 5 है और जो रिप्लेसमेंट सेट रहेगा इसका क्या है, दैट इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स। अब जो सॉल्यूशन सेट है इट इज़ द सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। तो अब देखिए इसको मैं इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाऊंगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन सेट करना है, फाइंड तो क्या रहेगा इसमें, सॉल्यूशन सेट वुड बी डॉटेड ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है वेरिएबल x, कंडीशन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट, वेयर x is smaller than 5, x is set of all natural numbers। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे सिर्फ इन 3 शब्दों में हमने बोल देना है, x इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये कंडीशन लेके आनी है हमने अपने सेट में, वेयर x इज स्मॉलर देन 5। अब ये हमारा जो हो गया सेट, सॉल्यूशन सेट। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो इस ये जो लाइन बोली है आपने लिखी है, इसको सिर्फ मैथमेटिकल टर्म में मैं इसको ऐसे बोलूँगा, x इज़ रिप्लेसमेंट सेट इज़ द, दिस इज़ द रिप्लेसमेंट सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स वेयर x इज़ स्मॉलर देन 5। अब अगर मैं आपको इसको एलेबोरेट करूं तो x सभी नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर में आपको पता है ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो इज़ होल नंबर, ज़ीरो से होल नंबर बनेगा। तो नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, राइट। अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि वेयर x इज ग्रेटर, ये दिस इज अनदर एग्जांपल, x इज ग्रेटर देन -2, वेयर, अगर मैं इसको वेयर द रिप्लेसमेंट सेट is a, -3, -3, -2, -1, 0, 1 2 3, x is greater than -2 where replacement set is a equal to this। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बच्चों, सो सॉल्यूशन सेट वुड बी इक्वल टू, अगेन फॉर सेट वी हैव टू राइट इन डॉटेड ब्रैकेट, सो x is the variable we will put here, where set is what, a,
दिस ए विल डिपिक्ट हेयर, यहाँ पे आएगा सच दैट x इज ग्रेटर देन -2। इस कंडीशन को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट बन गया। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, एलैबोरेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? तो मैंने दिखाना है x इज़ ग्रेटर देन -2। अब या तो इसको आप रफ काम में थोड़ा कर लीजिए, यहाँ पे मैं यहीं नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 2 वेयर रिप्लेसमेंट सेट इज़ a दिस, और इसकी एक कंडीशन बन गई x इज़ ग्रेटर देन -2। अब -2 से जो x को हमने -2 से बिगर रखना है, इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे जहाँ पे कि x -2 से बिगर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, डॉटेड ब्रैकेट, अब x को -2 से बिगर दिखाना है हमने, तो -2 से बिगर क्या है? माइनस में जो स्मॉलर है वो बिगर होता है, -1, ठीक है। -1 बिगर है। -1 के बाद जो है आ जाएगी 0, 0 भी बिगर हो गई -2 से। फिर प्लस में चले जाएंगे हम, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर इसने 3 तक ही लिया है तो हम यही रखेंगे इसको। मैक्सिमम लिमिट इज 3, राइट। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें जो चीज़ें बार बार यूज़ होंगी कि ये वाली के वर्ड n आएगा, तो n में आपने हमेशा ध्यान रखना है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। W इज सेट ऑफ होल नंबर्स, W ऑल होल नंबर्स। जब 0 नेचुरल नंबर में ऐड होगी तो दे बिकम होल नंबर्स, राइट। और Z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, -1 -2 डैश 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 डैश, -1 0 1 2 3 डैश डैश, राइट। Z माइनस में आएगा तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 ऑल नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। Z पॉजिटिव में आएगा तो Z का मतलब होता है जहलन, तो यहाँ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 जो भी है, प्लस Q इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इसमें सभी जो है रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, ये थी कुछ कॉमन चीज़ें। अब हम जो आपकी एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज को करने में आपने ध्यान रखने होंगे कुछ बहुत ज़्यादा, थोड़ा ये और चैप्टर है, ध्यान से समझ लेना है इसको। सो हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ x is a set of this -3 -2 -1 0 1 2, find the solution set of the following in equations, right. So first of all we are going to write here the main condition, x is -3 -2 -1 0 1 2 3. This is replacement set. We have to find out the solution set. So
for solution set, so here I am going to solve the first, that is solution. What is the condition? X plus 2 is less than 1 or 1 is greater than x plus 2, राइट स्टूडेंट्स। इसको देखते हुए हमने ये कंडीशन लेते हुए सॉल्यूशन सेट बनाना है। दिस इज रिप्लेसमेंट सेट, सो इसका मैं सॉल्यूशन सेट बनाऊंगा। अगेन हम इसको लिखेंगे डॉटेड ब्रैकेट में। अब यहाँ पे जो आपने रफ काम में ध्यान रखना है कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। अब इस सेट में ग्रेटर देन 1 क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर क्या हुआ? 1 से ग्रेटर लेंगे। 1 से ग्रेटर तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर हम इसको राइट करेंगे तो x to x is such that x plus 2 is greater than 1। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, हमने तो सिर्फ एलैबोरेट करना है, ये आपको समझाने के लिए। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर रखूँ, माइनस से स्टार्ट करते हैं, एक्स की जगह पर रखूँ -3 प्लस 2, तो ये क्या बनेगा? बिगर। तो दिस इज -1, दिस इज -1 और इज बिगर देन 1। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो एक हमारा आ गया -3, एक एलिमेंट आ गया -3। अब अगर मैं x की जगह पर रखूँ -2 प्लस 2, अभी -2 प्लस 2 तो कट गया, 0 बचा, तो ये बिगर है, तो ये भी हमारा आ जाएगा, हमारा एलिमेंट इसके अंदर। अब देखो कोई और आ रहा है कि -1 लगाऊं x की जगह पर, -1 प्लस 2, तो ये बन गया -1। तो -1 ना, सॉरी, ये -1 नहीं है पर 2 - 1 इज +1। तो दिस इज इक्वल, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नहीं आएगा। अब अगर लगाऊँ 0 लगाऊँ तो 0 प्लस 2 इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब आगे कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो यही 2 एलिमेंट आएंगे और यही हमारा आंसर है। आप इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, ये सही होना चाहिए बिल्कुल। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट वुड बी इक्वल टू -3। राइट। तो अब मैं इसको रब करूँगा, आगे सेकंड करेंगे। अब हम बस बेसिक चीज़ जिसको समझ में आ गई है, ही कैन डू दिस क्वेश्चंस, घबराना नहीं है। सेकंड इज 2x - 1, राइट। अब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए देखना है कौन सा वो सेटिस्फाई करता है। तो अब हम x की जगह पर पहले रखेंगे -3,
2 into minus 3 minus 1 4. So this is minus 6 minus 6 minus 1. So this is minus 7. So minus 7 is less than 4. So हमारा सॉल्यूशन सेट के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला एलिमेंट आ गया हमारा -3 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर नेक्स्ट है हमारा -2, अगर मैं लगाऊँ इसके अंदर 2 इंटू -2 -4 is less than 4. This is also satisfying like this. ये भी छोटा है -4 प्लस 4 से। तो यहाँ पे हमारा अगला एलिमेंट आ गया -2। ऐसे ही -1 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, तो वो भी छोटा रहेगा, तो ये भी आ गया इसके अंदर। अब आएगा 0। अगर मैं लगाऊं 2x की जगह पर 0 लेस देन 4, यहाँ पे 0 इज आल्सो लेस देन 4, तो 0 भी आ जाएगा हमारा। अगर मैं लगाऊं यहाँ पे 1 2 इंटू 1 2 1 जा 2 2 इज लेस देन 4, सो ये भी आ जाएगा 1 भी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं लगा दूं 2 इंटू 2 4 तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी हम गलती कर गए थे कि -1 को हमने माइनस नहीं किया, तो अब मैंने ये कर दिया है। तो ये देखिए प्लीज़, ये पहली कंडीशन होगी जब हमने -1 ये किया, -2 को रखा। अब ये अगली कंडीशन होगी जब ये -1 की वैल्यू रखी इसमें, तो ये भी बिगर आया। जब हम आगे 0 की वैल्यू रखी इस 0 की, तो ये भी बिगर आया, यहाँ पर बिगर चल रहा है। अब हम अगली कंडीशन रखेंगे कि x की जगह पर हम 1 रख के देखेंगे, प्लस में चले गए ना हम ये वाले, तो ये -1, सो 2 -1 1 इज लेस देन 4, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद 3 लगा कर देखेंगे हम कि 3x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो x की जगह पर 2 1 लगाए ना, अभी हम 2 लगाएंगे। सो 2 इंटू 2 -1, 2 2 जा 4 -1, सो 3 इज लेस देन 4, सो ये भी हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है 2, तो ये भी आ गया। अब इसके बाद हम 3 लगा कर देखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर जैसे -1 ग्रेटर 4, 2 3 जा 6 -1 4 5, सो ये जो है हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके बाद हम छोड़ देंगे। तो ये 3 वाला एलिमेंट जो है ये नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट, ये हमारा आंसर। ये सारी चीज़ जो आपने करनी है ये रफ काम में कर कर देखना, ठीक है, सारे को यहाँ पे नहीं लिखना। तो अब मैं इसको रफ करूँगा 2 को, तो अब बच्चों इसमें आपने जो 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, थर्ड पार्ट भी कर देता हूँ क्योंकि ये उसमें है, और इसमें से हाँ चलो मैं अब थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। थर्ड इज 2/3x - 1
राइट। थर्ड, तो इसमें जो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा, सो मैं यहाँ पे रफ वर्क का पोर्शन ज़्यादा है इसमें, तो हम x की जगह पर पहले रखेंगे -3, 2/3 इंटू -3 -1 इज लेस देन 1, ये कंडीशन है। तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे रह गया -2 -1, तो ये बन गया -3 इज लेस देन 1, तो ये हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो -3 आ गया इसके अंदर। और फिर हम लगाएंगे -2, 2/3 इंटू -2 -1, सो ये बन गया 2 2 जा 4, ये कटेगा नहीं, अब 2 2 जा 4 हो गया, -4/3 -1 इज लेस देन 1, सो 3 वुड बी एलसीएम, -4 -3 लेस देन 1, -7/3 लेस देन 1, तो क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस विल बी ऑलवेज लेस देन दिस, सो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसी तरह से -2 आया तो -1 भी रहे, क्योंकि ये माइनस में है। उसके बाद हम ज़ीरो लगा कर देखते हैं, तो 2/3 जब यहाँ पे 0 आ जाएगी तो ये सारा 0 बन गया, तो यहाँ पे सिर्फ -1 रह गया, तो -1 इज लेस देन 1, तो 0 भी आ जाएगा। और उसके बाद हम लगा कर देखते हैं 1, 2/3 को 1 से किया तो -1 ग्रेटर देन 1, 2/3, तो ये 3 बन जा 3 -3 हो गया, ये भी माइनस में जाएगा, तो माइनस वाला तो छोटा ही रहेगा, -1/3 लेस देन 1, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है 1 भी हमारे आंसर में आ जाएगा। अब हम लगाते हैं 2, 2/3 इंटू 2 -1 लेस देन 1, 2 2 या 4/3 -1 लेस देन 1, 4 -3 1/3 1, ये बन गया, हमने 2 लगाया यहाँ पर, तो ये बना 2 2 या 4, 4 -3 1/3 इज लेस देन 1, सो बच्चों ये डेसिमल में आ जाएगा। जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल वुड आल्सो बी लेस देन 1, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। अब अगर हम लगाते हैं 3 x की जगह पे, 2/3 इंटू 3 -1 लेस देन 1, 3 2 6/3, 3 2 जा 2 -1 ये 1, तो यहाँ से हमारी कंडीशन गड़बड़ा गई है, तो ये नहीं आएगा, तो ये एलिमेंट हमारे आंसर में रहेंगे। दिस वुड बी आवर सॉल्यूशन सेट, राइट। तो इसके बाद बाकी सब सम आपने, जो आपका होमवर्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, तो वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है if x is the set of natural numbers then find the set of each of the following in equation। अब set is
नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, x इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आपने माइंड में रखना है इसको क्या, कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जीरो को छोड़कर, 1 2 3 4 5 डैश 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 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका फर्स्ट, इसको ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस 8 इज लेस देन 0। 3x माइनस 8 इज लेस देन 0। तो x की जगह पर हम ये लगा के देखते जाएंगे जैसे पहले लगाया है हमने। तो इसका पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये, बाकी काम करेंगे हम रफ में, ये रफ वर्क। सो ये कह रहा है कि 3x माइनस 8 इज लेस देन 0। पहला एलिमेंट क्या है 1, तो x के यहाँ पर 1 लगाएंगे हम। 3 इंटू 1 माइनस 8 इज लेस देन 0। 3 1 जा 3, माइनस 8 रह गया, 3 माइनस 8 माइनस 5 इज लेस देन 0 और नॉट, यस। माइनस वाली जो कोई भी नंबर है वो 0 से छोटी रहेगी। तो यानी हमारा जो पहला ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, राइट। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो 2 की वैल्यू इसमें लगाएंगे। 3x की यहाँ पर हमने 2 लगाना है, माइनस 8, 3 2 जा 6 माइनस 8 is less than 0, minus 2 is less than 0, so this would also satisfy। so यहाँ पर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, 3 इंटू 3 माइनस 8 इज लेस देन 0, 3 3 जा 9 माइनस 8 इज लेस देन 0, माइनस 1 इज लेस देन 0, राइट। सो सॉरी, यहाँ पे जो है 9 माइनस 8 प्लस 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारी कंडीशन, क्योंकि ये बिगर हो गया तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो बाकी तो सारे इससे बड़े ही हैं, तो इसलिए हमारे 2 ही एलिमेंट रहेंगे इसके अंदर, 1 और 2, राइट स्टूडेंट्स। सो ऐसे करना है इसको। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट इज पार्ट सेकंड, आपका होमवर्क है, थर्ड इजी है, फोर्थ भी इजी है। अब मैं आपको पार्ट फिफ्थ करके दिखाऊंगा इसका। पार्ट फिफ्थ इज 3/2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 1 सॉरी इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो ये हमने करनी है इसको। तो अब हमने x की जगह पर अपने नेचुरल नंबर फिट करके देखते जाना है और करते जाना है। अभी तक बच्चों मैंने आपको एक मेथड एक्सप्लेन किया है, अब दूसरा मेथड इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे ये एक इनइक्वालिटी है कि अब यहाँ पे जो इसका नंबर वाला पोर्शन है 3/2, यहाँ ये प्लस में है, तो इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 3/2 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट 3/2 on both sides, so 3/2 माइनस x/2, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने इसको 3/2 इज़ ग्रेटर देन -1 माइनस 3/2। अब ये एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x/2
इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 वुड बी द एलसीएम, 2 1 जा 2 -2 -3, राइट। सो इसके बाद मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ तो ये बनेगा -x/2 -x/2 is 3 + 2 -5 greater than -5/2, राइट। अब हमने इस 2 को ख़त्म कर देना है ताकि हम किसी इस पे पहुँचे नतीजे पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, राइट। -x/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके बाद भी देखते हैं कि क्या ये, so this 2 cancels with this, so -x is greater than -5, -x is greater than -5। सो इसका फिर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो यहाँ पर माइनस में मान लो मैं रखता हूँ 1, -1 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन -5 है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा, यहाँ पे solution set would be equal to 1 -1 is greater than -5, -2 is greater than -5, -3 is greater than -5, -4 is greater than -5, and और अगर हम इनको भी लगाएंगे तो 1 2 3 4 -5 इज इक्वल टू, तो -5 जो है हमारा इससे बाहर हो गया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट रहेगा, राइट। तो ये एक और तरीका था जो आपको बताया मैंने। तो ऐसा ही एक जो मेथड इसमें अपनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में क्या है कि इसको देखते हुए हमने -1/4 लेस देन इक्वल टू 1/2 -x/3, राइट। तो इसमें हमने, अब देखिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी पैदा कर रही है वो है 1/2। अगर हम पहले इसको ख़त्म करें तो उस ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो -1/4 माइनस करना है 1/2 हमने, लेस देन इक्वल टू 1/2 -x/3 -1/2। तो ये जो है ख़त्म होगी। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। एलसीएम दोनों 4 और 2 का 4 आ गया, तो 4 1 जा 4 -2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे बचा क्या, -x/3। तो ये कितना बन गया, -2 + 1 -3/4 इज लेस देन इक्वल टू -x/3। अब हमने जो है यहाँ से 4 को और यहाँ से 3 को ख़त्म करना है। तो कौन से कॉमन टेबल पे जा रहे हैं, दोनों 12 पे।
तो मल्टीप्लाई both sides by 12, right? -3/4 into 12 less than equal to minus x upon 3 into 12. 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, -3 3 जा 9 less than equal to -4x. अब इसमें से हमने ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई कर दे लेस देन इक्वल टू। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट वुड बी इक्वल टू व्हाट? सो 4 की जगह पर हम x की जगह पर 1 लगाएं तो क्या बनेगा? 4 1 जा 4, तो लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -9 -4, राइट? तो 1 आ जाएगा। अगर 2 करूँगा 4 2 जा 8, -9 -8 लेस देन 9 इज लेस देन -9 इज लेस देन -8, तो 2 भी कंडीशन पूरी कर रहा है। अगर मैं लगा दूंगा 3 4 जा 12, वो उससे बिगर हो जाएगा। तो इन दैट केस आवर आंसर वुड बी 1 2, राइट? सो नेक्स्ट